Hello everyone. In last lecture, we have discussed about the meaning of the weather, what is mean by climate, okay? What is the difference between weather and climate, okay? And again, we have seen which are the factors or we have discussed the elements of weather. That the elements of weather are temperature, air pressure, wind, moisture, and precipitation. In today's lecture, we are going to discuss all these elements of the weather one by one. Okay, so let us start with the temperature. The earth surface gets heat from the sun. Obviously, आपको ये सारी चीजें पता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस हो ये किससे हीट होता है, just because of the sun. Okay, and as a result the surface gets heated up. Okay, the air close to it, close to the surface start becoming hot, and later one by one different layers of air at higher elevation receives it. For example, suppose आपको क्या करनी है, एक बुक है, suppose you are sitting in the class, you are sitting at the first bench and the next your friend is sitting at the last bench, and if you want to just give that book to your friend who is sitting at the last bench, okay, so what will you do? Instead of वो वहां से आपको उठकर वहां इंस्टेड ऑफ मूव फ्रॉम एनीवेयर, ओके, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वहां से उठकर नहीं जाना पड़ेगा. यू डोंट हैव टू मूव. विदाउट मूविंग you can just transfer that copy, okay, from you to your friend. Okay, so how do you do this? आपको देखो आपके पीछे भी कोई बच्चे बैठे होंगे. So if you will give the copy to the next one, then obviously it will get reached to your friend which is sitting at the last bench. Okay, get it? So similar way, क्या होता है कि जब अर्थ सरफेस गर्म होता है तो ऊपर की जो सरफेस की जो एयर है वो गर्म होती है और धीरे धीरे जो लेयर बाय लेयर जो है वो गर्म होती जाती है. ठीक है, तो the surface becoming hot and later one by one the different layers of the air at higher elevation receive the heat. Therefore, as we move upward from sea level, the temperature of the air decreases. Obviously, जितना temperature यहाँ का होगा, उतना temperature जो है वो obviously कम होता जाएगा. आपको पता है कि जब ऊपर जाएंगे तो obviously cold होता है condition, थोड़ा ठंडा होता है. ठीक है, तो ये जो हीट है ना, ये जो है लेयर जो है कि वो ठंडी होते जाएंगे, यानी टेम्परेचर जो है ऊपर का हाई एल्टीट्यूड का ये कैसे रहेगा, लेस रहेगा. ओके, द टेम्परेचर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. अभी कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि दिस इज द इक्वेटर. ठीक है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज द पोल. ठीक है, this is the north pole, this is the south pole. Okay, so यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल और ये है आपका द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. And this one is Arctic Circle. This is the Antarctic Circle. Okay, so you know that the heat received by the sun, which is Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, which are perpendicular. यहाँ पे जो rays मिलती है perpendicular rays मिलती है, ये concentrated होती है. But जैसे हम इस तरफ जाएंगे हम आर्टिक अंटार्कटिक सर्कल, तो यहाँ पे जो रेज है देखो इक्वेटर के करीब एकदम स्ट्रेट है, पर जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के जाएंगे तो यहाँ पे रेज क्या होंगी, स्लैंटिंग होगी. कैसे होंगी, स्लैंटिंग होगी. तो इक्वेटोरियल रीजन जो है ऑब्वियसली ये हॉट रहेंगे और ऊपर का जो द रीजन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में का, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो रीजन है, ओके, तो वो कम हॉट होगा एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन.
And if we talk about the North Pole and South Pole, the temperature is very cold. Just because of these regions are getting a slanting sun rays. Get it? So that's why it is said that the temperature also goes on decreasing from equator towards the pole. Get it? Now we will talk about the air pressure. As weight, as a result, it creates pressure. Okay. Everything which is present on the earth has a weight. Air is also having the weight. आपको रहता है कि air जो बहुत हल्की होती है, but though it is having the weight, okay. As a result, it creates pressure. और जिसको weight होता है वो pressure create जरूर करेगा. जिसको भी weight होगा वो pressure जरूर create करेगा. And the pressure exerted by the air on any surface, okay, that is called as the air pressure. Understood what is meant by air pressure? The pressure exerted by the air on any surface, okay, then it is called as the air pressure. The lowermost layer of the air gets subjected to the pressure of the upper layer. Hence, the density of the lower layer of air increases, and there is a greater air pressure near the surface of the earth, and it decreases with increasing height. This is a vertical air pressure, and these changes also occur in horizontal manner. This gives rise to a wind. Okay, so let us understand the meaning of this paragraph. Okay, so let us understand. You know that air has a weight, obviously, and the pressure exerted by the air on any surface is called as the air pressure. Okay, the lowermost layer of the air gets subjected to the pressure of the upper layer. अब देखो क्या होता है कि आप ये देखो, ये लेयर है, इसके ऊपर एक ये ओके, इसके ऊपर और एक उसके ऊपर एक लेयर. तो ऑब्वियसली ये जो है ये लेयर अपर लेयर है, किसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी? लोअर लेयर के ऊपर. ठीक है, दैट मीन्स आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर बात करेंगे तो एयर जो है वो ज्यादा, उसकी लेयर्स ज्यादा है. ठीक है, और वेट ज्यादा है. लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे उसका जो प्रेशर है ऑब्वियसली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एयर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा. ओके, इट विल बी हायर. बट एज वी मूव फर्दर अप एंड अप, ओके, द एयर प्रेशर विल डिक्रीज. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द वर्टिकल एयर प्रेशर. उसे बोलते हैं हम वर्टिकल एयर प्रेशर. And these changes also occur in a horizontal manner, and these give rise to winds. और इसके वजह से देखो ये लेयर कैसी है? हॉरिजॉन्टल है. एयर की जो लेयर कैसे है? हॉरिजॉन्टल है. इसीलिए और इसके वजह से क्या होता है? विंड. आपको पता है ना, जब बहुत जोरों से हवा आती है हम बोलते हैं तो उसे हम विंड बोलते हैं. तो जब एयर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो आपको विंड के इसमें दिख ही जाता है. ठीक है, समझ आ जाता है, महसूस हो जाता है. So that is all about the air pressure. Now we will move towards the next element of the weather, that is wind. Okay, so air start moving from higher pressure towards the lower pressure area in the horizontal direction. Just now we have seen. Okay, this moving air is called wind, and wind blows from high to low pressure areas, and its speed depends upon the amount of difference in the air pressure. ठीक है, हमेशा हाई प्रेशर टू जो है लो प्रेशर के एरिया में ये विंड बहेगी. इसीलिए तो हमको विंड एयर महसूस नहीं होती है, लेकिन विंड वी कैन फील. एक जोरों से हवा आती है, आपके सपोज खिड़की ओपन रखी है, जोर से हवा आ गई तो आपकी बुक्स के अगर कोई अपने पेजेस रखे होंगे तो वो उड़ जाएंगे विद द प्रेशर ऑफ दैट विंड. ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि एयर का प्रेशर कितना, भी विंड कितने स्पीड से जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? द प्रेशर ऑफ द एयर. एयर का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीड से वो जो है विंड है वो ब्लो होगी. ओके, सो दैट इज अबाउट द विंड. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मॉइस्चर. द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेपर and the air that has greater amount of vapor is called humid air. आपको पता है humidity, आपने ये लेसन पढ़ा है. Earlier we have discussed about the humidity, relative humidity, absolute humidity. Okay, ये concept आपने earlier classes में पढ़ा होगा. ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है, कि एटमॉस्फेयर आपको पता है एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है,
ओके, 21% ऑक्सीजन होता है और रिमेनिंग जो 1% है वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, दैट मीन्स एयर हैज वाटर वेपर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो द एयर दैट हैज अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर, ये देखो एयर की, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जो है यू ईट्स 2 चपातीज डेली। ठीक है, आप जो है लंच में आप 2 चपाती खाते हो, डिनर में आप 2 चपाती खाते हो, बीच में आप नाश्ता करते होंगे, डजंट मैटर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द लंच, योर कैपेसिटी। ओके, so during lunch you prefer to eat 2 chapatis, and your mom says, your mother says, this is not enough for you, so you should eat 3 or 4 chapatis. But actually you can eat only 2 chapatis. What will happen? You can't eat more than that. Okay, and suppose your mother force it to do, then obviously the side effects will be seen in the form of vomiting and stomach ache and all that. Okay, actually your capacity is having of 2 chapatis, and your mother is forcing to eat 3 chapatis actually, so it will not be happening, you will not just able to eat it. सिमिलरली देखो ग्लास भरा हुआ है, यू आर हैविंग द ग्लास, ओके, उसकी कैपेसिटी जो है सपोज 1/2 लीटर की है, आपने 1/2 लीटर का जो ग्लास लिया उसमें, या फिर बॉटल ले लो, चलो 1 लीटर की बॉटल ले लो, उसमें आपने पानी डाला, अब 1 लीटर के ऊपर वो पानी जो है उसमें स्टोर होगा, बट आप उसमें अगर पानी डालते जाएंगे व्हाट विल हैपन, इट विल बी फ्लो, वो जो बॉटल से जितना पानी है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इट विल फ्लो टू द ग्राउंड। तो एक लिमिट रहती है कि एयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में उसका भी एक फिक्स रेशियो, एक अमाउंट होता है कि उतनी क्वांटिटी में वो क्या कर सकता है, जो वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है। समझ में आया? तो उसकी भी एयर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि इट कैन होल्ड द मॉइस्चर। ठीक है, ये जो है ये इतना अमाउंट में जो है वो क्या कर सकती है, मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। ओके, रिकॉर्डिंग आई विल टेल यू कि देखो अगर 1 क्यूबिक मीटर अगर एयर है, कितना, हाउ मच, 1 क्यूबिक मीटर, इट इज द यूनिट, क्यूबिक मीटर इज द यूनिट। ओके, सो अगर 1 क्यूबिक मीटर एयर है, ठीक है, तो उसमें 1 क्यूबिक एयर मीटर जो है वो कितनी होल्ड कर सकती है मॉइस्चर, 12.8 ग्राम्स। हाउ मच, 12.8 ग्राम, इतना ही मॉइस्चर वो होल्ड करेंगे। एट हाउ मच डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर वुड बी 15 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, 1 क्यूबिक मीटर जो एयर है कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, 12.8 ग्राम, इतना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकता है। उसके बाद वो मॉइस्चर है होल्ड जो है नहीं कर सकता है, और इसीलिए तो हमारे यहाँ बारिश होती है। समझ में आया ना? जैसे देखो ओशन का पानी जो है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस द वाटर ऑन द ओशन गेट हीटेड। ओके, और वो पानी गर्म होने की वजह से वेपर्स निकलते हैं, इवेपोरेट होता है, दैट वाटर गेट इवेपोरेटेड एंड स्टीम गेट अराइज फ्रॉम दैट। ओके, और जो स्टीम ऊपर जाती है एयर के साथ, तो हल्की ऑब्वियसली वो स्टीम जो है ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वो जो है हल्की हल्की होती जाएंगी, और जब वो एकदम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगी तो वो वहां की एयर बहुत ही ठंडी है। हमने देखा है कि टेम्परेचर जो है कम होता है एट हाई अल्टीट्यूड। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी वाटर वेपर्स का कन्वर्शन ड्रॉपलेट पे हो जाता है। अभी ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं, हमारे जो हायर अल्टीट्यूड पे, जो आपको पता है कि एयर में क्या है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, तो ये जो वाटर वेपर है ये जो डस्ट पार्टिकल के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और एक जो है आपको क्लाउड्स बनाते हैं, पता है आपको क्लाउड्स दिखाई देते हैं, और जब वहां पे एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है, आई टोल्ड यू कि 1 क्यूबिक मीटर जो है एयर जो है वो 12.8 ग्राम मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। उसके ऊपर अगर मॉइस्चर चला जाएगा तो व्हाट विल हैपन, जो आपने देखा कि अगर 1 लीटर की बोतल है तो वहां तक की वो होल्ड करेगा, बाकी का सारी पानी जो है वो नीचे जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट कि जब क्लाउड के एयर में जो ये है कैपेसिटी है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, वो खत्म हो जाती है, तो इट विल रीच टुवर्ड्स द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ द रेन। समझ में आया? तो मैंने चलो आपको हिस्ट्री बता दी पूरी। ठीक है,
सो इतना समझ लो कि एयर क्या करती है, मॉइस्चर होल्ड करती है, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ओके, दैट होल्ड्स, ओके, उसको बोलेंगे हम ह्यूमिडिटी। जितना वेपर कंटेंट है उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी, ठीक है। और ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, और कितना वो एयर कितना जो है मॉइस्चर को होल्ड करते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम ह्यूमिडिटी, ठीक है। एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज द मॉइस्चर। सो द प्रोपोर्शन ऑफ द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर, एक और बात जो है वो समझ लो कि as the temperature increases, water holding capacity of the air increases. Obviously, जब देखो क्या होता क्या है कि जब टेम्परेचर गर्म होगा तो एयर भी गर्म होगी, ठीक है, वो एक्सपांड होंगी, ठीक है ना। तो वो उतनी क्वांटिटी में क्या करेंगी, वेपर को होल्ड करेंगी। समझ में आया? सो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अगर टेम्परेचर कम होता है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। If the temperature is higher, the water holding capacity is higher, and if the temperature is less, the water holding capacity is also less. Okay, that is the fact. So that's why it is said that air with a high temperature holds a greater amount of moisture. तो ये moisture holding जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? Main factor is temperature. Temperature plays an important role, okay, in this matter, holding the water vapor content. Okay. Now next one is the precipitation. भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। Just now I have just taught this topic. What is mean by precipitation? Okay. So let us start. What is mean by precipitation? Vapor in the atmosphere condense into water droplet, just now I told you, और snow particles. कभी कभी क्या होता है, अगर ऊपर की एयर बहुत ठंडी रहती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं होता है, तो कभी कभी स्नो पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड देयर शावरिंग ऑन दी अर्थ, अगर वाटर जो है रेन के फॉर्म में अगर उसका शावरिंग होता है तो हम उसको रेनफॉल बोलेंगे। अगर वो स्नो के फॉर्म में अगर नीचे आता है और सरफेस पे तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्नोफॉल बोलेंगे। Okay, and the showering of the earth on the showering of the on the earth is called as the precipitation. जो भी पानी जो है, जो स्टीम ऊपर बनती है क्लाउड से, जो पानी आता है जो, ठीक है, नीचे गिरता है, ओके, जो वाटर आता है उसको शावरिंग अगर बोलेंगे हम, तो उस शावरिंग को फिनोमेना उसको नाम देते हैं हम प्रेसिपिटेशन। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेशन। ओके, सो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीनों प्रोसेस जो है रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। इवेपोरेशन नहीं होगा तो कंडेंसेशन नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। सो ऑल आर रिलेटेड फिनोमेना। ओके, सो रेनफॉल, स्नोफॉल, हेनस्टॉर्म etc are form of precipitation. So question may be asked, which are the form of precipitation? So your answer should be rainfall, snowfall and hailstone. Please underline. What are the forms of precipitation? Rainfall, snowfall and hailstorm. Okay. So weather is described. Yesterday only I told you the difference between the weather and the temperature. Weather keeps on changing. Okay, and while we just talk about the climate, तो climate जो होता है तो throughout the year average condition जो है उस place की देखी जाती है, तो throughout the year ये constant रहता है, ठीक है। It is not changing daily, ठीक है। So what is mean by weather? Okay, the condition prevailing at a given time. Okay, and while the climate is described on the basis of the condition prevail over a longer period of time. Yesterday only I have just in the last lecture only I have just given you the definition along with the meaning. Okay, so changes in the climate takes place over a long period of time and these are not perceived easily. Okay, so besides that, the latitudinal position, height above the sea level, nearness to the ocean current etc are the factors that influence the climate. ठीक है। अदर क्लाइमेट जो है, अदर जो फैक्टर है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट आर द लैटिट्यूडनल पोजीशन। ऑब्वियसली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने कल ही देखा था कि लोअर प्रेशर बेल्ट कहाँ बनते हैं, हाई प्रेशर बेल्ट कहाँ बनते हैं, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ नेक्स्ट, हाइट अबाउट द सी लेवल। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर जाते जाएंगे, यानी एटमॉस्फेयर की तरफ ऊपर ऊपर जो स्काई की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, एयर प्रेशर भी डिक्रीज होता है, दैट वी हैव सीन। So it is a related concept. Then ocean currents,
and nearness to ocean. So all are the factors that influence the climate. Okay. So beside these mountain ranges, type of land, local winds, and other factor influence the climate of region. चलो climate को affect करने वाले जो factors है, these are the latitudinal position, height above the sea level, nearness to the ocean, oceanic current. Along with that, the mountain ranges, type of land, local winds are also the important factors that affects the climate of a particular region. So in this way, we have completed our lesson number 4, weather and climate. Okay, again we will meet with the new topic. Okay, till then, goodbye and have a nice day.